ठीक है, चलो हम लोग वी विल स्टार्ट इंडक्शन मोटर्स टुडे, है ना, इंडक्शन मोटर ड्राइव्स। तो जो इंडक्शन मोटर्स हैं, दे आर एक्चुअली द मोस्ट पॉपुलर ड्राइव्स. It is said that 80% of the power that is built in the world is consumed by induction motors. Because industries जो हैं, they are the major consumers, और induction motor सबसे ज़्यादा इंडस्ट्री में यूज होती है. It is said that induction motors are the industrial work horses. पूरी जो इंडस्ट्री है वो इनके ऊपर है. ठीक है. इंडक्शन मोटर स्पीड कंट्रोल के लिए मोस्टली 4 मेथड्स यूज होती हैं. पहली उसमें से है स्टेटर वोल्टेज कंट्रोल. ठीक है. उसके बाद इसमें ये स्टेटर वोल्टेज कंट्रोल जो है, ये एसी वोल्टेज कंट्रोलर से होता है. दूसरा है वेरिएबल फ्रीक्वेंसी VSI ड्राइव्स, तो मतलब फ्रीक्वेंसी कंट्रोल्ड इंडक्शन मोटर ड्राइव्स. ये दोनों जो कंट्रोल हैं, दे आर फ्रॉम द स्टेटर साइड. ओके, so they are used for squirrel cage induction motor. And in slip ring induction motor, which is also known as wound rotor induction motor, control is from the rotor side. Okay? So there are two methods. One is the static rotor resistance control, and second is slip power recovery. और slip power recovery जो है, this method has got two methods: static Cramer drive and static Serbius drive. Okay, so these methods. Good morning, Sanjay. He is joining, I think. So these all these methods, 4-5 टाइप के methods हैं, ये आप लोगों को बेसिकली इन इंडक्शन मोटर ड्राइव ये मेथड्स हमको सारे पढ़ने हैं. ठीक. सो एज आई सेड कि इन ड्राइव्स two things are most important. First is the torque slip characteristic, and secondly means in the torque slip characteristic also two things are there which are most important, and the two things are basically, you can say that these two things are, number one is torque and the other is starting control current. क्योंकि इंडक्शन मोटर में ये दो इश्यूज हैं विच यू हैव टू ऑलवेज कंसिडर. टॉर्क की जब बात करें तो 2-3 टाइप का टॉर्क होगा. स्टार्टिंग टॉर्क, तो ये स्टार्टिंग करंट से लिंक्ड हो गया. देन देयर इज ब्रेकडाउन टॉर्क या मैक्सिमम टॉर्क, दैट इज Tmax, TM या Tmax. ठीक है. और दूसरा हो गया आपका रेटेड टॉर्क, T रेटेड या T फुल लोड. ये एक ही चीज होता है, फुल लोड टॉर्क या रेटेड टॉर्क. ठीक है. तो the most important variables in induction motor are torque, these three types of torques, current में starting current and full load current. full load या इसको TR बोलते हैं, मोस्टली TR के IR कहते हैं, रेटेड करंट. IR रोटर करंट को भी बोलते हैं. So actually you have studied, and the third thing is the slip. S is very important. S भी दो टाइप की होती है. One is the slip where the torque is maximum, which is called as SM. Now remember, SM is not the maximum slip, but the slip at which the torque is maximum. ठीक है. एंड दूसरी आपकी रनिंग स्लिप होती है, जो किसी भी ऑपरेटिंग पॉइंट के करस्पॉन्डिंग स्लिप. ठीक है. These are the variables. Okay, and they have got specific because these are drives, so all equations will be written in terms of synchronous speed. Speed, angular velocity. Omega m is the angular speed of the motor, and omega ms is the synchronous speed of the rotating magnetic field. तो ये जो terms हैं, torque, current, slip और speed. So you will find that other than the rotor parameters, mostly we will be concerned with all these variables. ठीक है.
And because we are going to study not induction motor but induction motor drive, therefore when you plot the torque slip characteristic, the torque will be on the x-axis, okay, and the slip and the speed, स्लिप और स्पीड आपस में इंटरचेंजेबल है ना. जैसे इफ यू नो द सिंक्रोनस स्पीड, ओमेगा एम कैन बी रिटन एज ए फंक्शन ऑफ स्लिप. यू कैन राइट ओमेगा एम इज इक्वल टू ओमेगा एम एस इंटू 1 minus slip at any point. Whenever if slip is s, then the rotor speed will be given by this equation. All this you know, we will just revise it once and we will brush up all the induction motor knowledge which is necessary for understanding induction motor drives. क्योंकि अब हमें drives देखना है. तो because it is drives, यहाँ पे torque और यहाँ पर speed आएगा आपका. ठीक है. मोटर में उल्टा होता है, टॉर्क यहाँ लेते हैं और स्पीड यहाँ लेते हैं. उसका रीजन भी मैंने उल्टा, मतलब एक्सेस टी और ओमेगा के एक्सेस चेंज हो जाते हैं. When you are studying the motor as a machine, motor as a motor, okay, then you have a different orientation because x-axis क्या होता है, independent variable और y-axis पे होता है dependent variable. ठीक है. तो इसी हिसाब से टॉर्क में, ड्राइव्स में टर्मिनोलॉजी चेंज हो जाती है कि कौन सा वेरिएबल इंडिपेंडेंट है और कौन सा डिपेंडेंट. ये भी हम लोगों ने पहले भी डीसी ड्राइव में भी पढ़ा है. दैट यू आर कंसर्न विद. पहले हमारा टॉर्क आएगा. टॉर्क इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, मतलब टॉर्क के हिसाब से हम मशीन सिलेक्ट करेंगे कुछ, और स्पीड की बात बाद में आएगी. स्पीड इज अ डिपेंडेंट वेरिएबल, इसीलिए बिकॉज दिस इज अ डिपेंडेंट वेरिएबल ये वाई एक्सिस पे प्लॉट होगा. ठीक है. So if you have any doubt, ये syllabus में अभी आपको I was just telling you about the syllabus कि how many types of speed control are there and आगे slides भी हैं. And I will again tell you कि whatever notes are being shared with you, so go through the notes properly. And when you are doing the assignments also use the notes rather than using कोई भी Google कर लिया या कुछ कर लिया. So just take help from your notes. Mostly 90% of the things are available in notes. Or because this is now Corona time, so 90 भी नहीं, you can say you can depend on the notes up to 95% for your examination. Okay? पूरी help आप इससे ले सकते. बहुत थोड़ा ही कोई portion होगा जो इसमें बचा होगा. Okay? Now, as I said, we will study those points about induction motor, okay, which are relevant to induction motor drives. The first thing is when you are talking of an induction motor drive, so we compare the squirrel cage induction motor with DC motor. You know that there are two types of induction motor, squirrel cage and slip ring motor. Slip ring motor को wound rotor induction motor भी बोलते हैं because उसमें rotor में winding होती है. ठीक है. But if you have to compare to DC motor, then you compare with squirrel cage induction motor. Because wound rotor is a special different type of. तो इसके क्या क्या एडवांटेजेस हैं? The advantages of an induction motor over DC motor. Induction motor मतलब cage induction, not slip ring. Cage induction motor has got these advantages. कि this is more rugged, rough and tough है. This has got lower maintenance, better reliability, lower cost, lower weight, lower volume and lower inertia. Efficiency of induction motor is also high and therefore it can operate in dirty and explosive environment. So you can see all these properties make the squirrel cage induction motor ideal for industrial application. And therefore, squirrel cage induction motor is considered to be most suitable. This is ideal for industry. अब इसमें प्रॉब्लम क्या थी? The major drawback of DC motors is the presence of commutator. हम लोग जानते हैं कि ये सारे एडवांटेज इसलिए हैं कि DC मोटर में there are commutator and brushes which need frequent maintenance and motor becomes unsuitable for dirty environments या outdoor environments क्योंकि you have to do again and again, you have to do the maintenance. किसी inaccessible जगह पे मोटर रखी है, कुछ है, तो maintenance becomes costly also and the performance is degraded. Other than the ratings and all also, induction motors are available in much higher ratings than DC motors.
अब इन स्पाइट ऑफ दीज एडवांटेजेस इनिशियल टाइम्स में इंडक्शन मोटर्स जो है वो कांस्टेंट स्पीड के लिए, इंडक्शन मोटर में मैंने पहले भी आपको बताया है कि इंडक्शन मोटर में स्पीड कंट्रोल इज नॉट एज इजी एज इन डीसी। ठीक है, तो उसका सीधा रीजन है कि डीसी मोटर सेपरेटली एक्साइटेड, सेपरेटली जब हम ड्राइव में यूज करते हैं तो वी आर ऑलवेज यूजिंग सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर बिकॉज यू गेट decoupled two circuits, totally decoupled, field circuit, armature circuit. Okay, and this is not so in induction motor, it is a singly excited motor. So that is why पहले जमाने में इसको वेरिएबल स्पीड ड्राइव के लिए तो यूज ही नहीं करते थे, इंडक्शन मोटर्स वे यूज ओनली वेयर कांस्टेंट स्पीड्स वेयर। ठीक है, बिकॉज जो भी कन्वेंशनल स्पीड कंट्रोल मेथड्स हैं इंडक्शन मोटर की, they were not possible, they were either very expensive or they were highly inefficient due to drives now with the improvement of semiconductor devices and static converters, because we have done lot of progress in converters and drives, and now we have fast switches available with us, so we can make a very good VSI and we can control induction motor like a DC motor. Power electronics has made control of induction motor easy, and therefore variable speed induction motor drives are now popular. और अच्छा, बाकी एडवांटेज तो इसमें होते ही होते हैं सारे, फिजिकल एडवांटेजेस की कॉस्ट कम है, वॉल्यूम कम है, मेंटेनेंस नहीं है, रिलायबल ज्यादा है, साइज कम लेता है, मतलब और सारे जो फिजिकल पॉइंट्स होते हैं दे वर ऑलरेडी इन द फेवर ऑफ इंडक्शन मोटर इफ यू वांट टू यूज अ ड्राइव। बट बिकॉज ऑफ द स्पीड कंट्रोल फैक्टर, जैसे ट्रैक्शन वगैरह में डीसी सीरीज मोटर ही यूज होता था, it was thought कि induction motor is not suitable for high starting point. Yeah, induction motor is not suitable when speed control is required. But the scenario has completely changed during the last 20 years. अब आप देख रहे हैं ट्रैक्शन में भी 25 kV AC ट्रैक्शन में क्या यूज होता है, इंडक्शन, है ना। 4 इंडक्शन मोटर्स का ऐसा एक मॉड्यूल लोकोमोटिव में लगता है, तो ट्रैक्शन हो कुछ हो, अब सभी जगह 3 फेज इंडक्शन मोटर, एंड वो भी कौन सी वाली, स्क्विरल केज इंडक्शन। याद रखिए कि वाउंड रोटर इंडक्शन मोटर is used rarely for specific purposes. Normally wound rotor motors are used in certain applications जहां पे आपको रोटर साइड से स्पीड कंट्रोल करना, ठीक है, क्योंकि स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर में रोटर पूरा बंद होता है, रोटर पे कोई आपका कंट्रोल नहीं है, यूजर हैज नो कंट्रोल ऑन द रोटर. So when you want to control the speed from the rotor side, then only you use the wound rotor induction motors for specific applications only. Baki most of the places you will find that we are using squirrel cage induction. ठीक है, so अब आपने देखा कि because of the power electronic converters, variable speed induction motor drives are popular and possible, feasible. ठीक है, and these match the cost and performance of DC drives. बल्कि जो इंडक्शन मोटर्स होती हैं, एक्चुअली इंडक्शन मोटर ड्राइव्स आर चीपर देन डीसी मोटर ड्राइव्स। यहाँ पे तो मैच लिखा है बट एक्चुअली में देखा जाए तो दे आर चीपर, क्योंकि मोटर इज चीपर, ड्राइव तो दोनों का करीब करीब सेम ही कॉस्ट लगेगा, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स कन्वर्टर्स हैं तो डिपेंड करेगा कितने SCR हैं, कितना क्या क्या है उसके अंदर, आर्किटेक्चर कौन सा यूज हुआ कन्वर्टर का, बट मोटर्स तो सस्ती होती है। ठीक है, नाउ वी आर कंपेयरिंग द टू टाइप्स ऑफ, अपने पहले क्या किया, स्क्विरल केज मोटर को डीसी मोटर से कंपेयर किया, ठीक है, रिवाइज करने के लिए। अब हम लोग स्क्विरल केज, देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंडक्शन मोटर्स, so we are comparing the two types of induction motor. ठीक है, तो you know that दोनों के स्टेटर तो सेम होते हैं, this point is same for ये and ये, दोनों में सेम है। The stator of induction motor has balanced 3-phase winding. ठीक है, we are talking of 3-phase induction motor, क्योंकि when we talk of industrial drives तो single phase motors, तो single phase induction motor तो बहुत कम यूज होगा, they are just for very small application. Okay, so this is 3-phase, so stator has a balanced 3-phase winding दोनों में, लेकिन अब रोटर दोनों के फर्क होते हैं, आपको मालूम है, स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर द रोटर हैज लैमिनेशंस बट नो वाइंडिंग, मींस रोटर में कोर होती है, लैमिनेटेड कोर होती है, लैमिनेटेड कोर, मैग्नेटिक कोर, but there is no winding.
स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर में कोई वाइंडिंग नहीं होती. That is why it is not possible to connect any resistance or anything in the rotor circuit for getting good starting torque या कुछ भी. तो रोटर इसका ओपन नहीं होता है. You cannot do anything to the rotor. Okay? It is like, it is a core. उसमें करंट्स जो फ्लो होती है वो अपने आप शॉर्ट सर्किटेड करंट्स होती है. करंट फ्लो होती है जब शॉर्ट सर्किटेड पाथ्स बनते हैं, उसमें करंट हो जाती है, एंड ड्यू टू दैट टॉर्क. Whereas in the wound rotor induction motor, जिसको स्लिपरिंग इंडक्शन मोटर भी बोलते हैं, wound rotor induction motor, इसमें rotor also has a balanced 3-phase winding, and remember the winding is done for the same number of poles as that of the stator winding. आपको मालूम है कि जो वाइंडिंग है वो नंबर ऑफ पोल्स पे डिपेंड करती है ना, क्योंकि वाइंडिंग का जो एक सिरा होता है, जो आप वाइंडिंग बना रहे हैं, दिस इज वन सिरा ऑफ द वाइंडिंग and this is another sira of the winding, and these two ends are connected like this. Okay, okay. Now if this is under n pole, इस पूरे को मिला के अपन क्या बोलते हैं, कॉइल. दिस इज वन कॉइल. इफ दिस कंडक्टर, ये कंडक्टर है, ये तो उसके एंड कनेक्शन है. दिस इज द मेन कंडक्टर जो पूरा आपकी सिलिंड्रिकल लेंथ पे कंडक्टर रहता है. पीछे का हिस्सा तो छोटा सा होता है, इतना बड़ा नहीं, ऐसे ऐसे बनेगा वो कनेक्ट करने के लिए बस इन दोनों. ठीक है. So this is one conductor, conductor 1, this is conductor 2, this is 2, this is, and where is this conductor located? बताओ. The first conductor and second conductor, मतलब जो coil है, first conductor is located under N pole. So where is the second conductor located? बोलो बोलो. Normally for a full pitched winding. For a full pitched winding, बताओ दीक्षा संजय हो गए क्या तुम लोग? Where is the second conductor located? हाँ बताओ बताओ. The second conductor is located under the S pole. अगर शॉर्ट पिच हो, इसका मतलब ये हुआ कि अगर 4 पोल की मशीन है, S pole, yes. हाँ S पोल, तो मतलब ये कहने का मतलब सिर्फ इतना था कि वाइंडिंग जो है वो नंबर ऑफ पोल्स पे डिपेंड करती है ना. वाइंडिंग जो है इट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ पोल्स. दिस इज कॉल्ड पोल पिच. ये पूरा जो होता है दिस इज पोल पिच, है ना. एंड वाइंडिंग डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ पोल्स. तो और अगर शॉर्ट पिच करना है तो यहाँ से थोड़ा सा अपन एस के, पूरा एन और एस की जगह नहीं बल्कि कंडक्टर ये ले लेंगे, तो इसको बोलेंगे शॉर्ट पिच वाइंडिंग. और ये जो एंगल है ये हो जाएगा एंगल ऑफ द शॉर्ट पिच. मान लो 10 डिग्री 20 डिग्री जितना भी छोटा करेंगे उसको, है ना, क्योंकि आपको पता है कि वाइंडिंग नॉर्मली आर नॉट फुल पिच बट शॉर्ट पिच. बट ये जो भी है कैलकुलेशन यहीं से करेंगे, मतलब नंबर ऑफ पोल्स आर इम्पोर्टेंट. तो the winding on the rotor also is for the same for the same number of poles as for the stator. So means stator and rotor winding has got the same number of poles. That is why pole changing method जो होती है वो wound rotor induction motor में यूज नहीं कर सकते, क्योंकि आपने स्टेटर के तो पोल चेंज कर दिए कनेक्शन चेंज करके, अब रोटर के भी करने पड़ेंगे अगर आपको यूज करना है, तो दैट विल बिकम टू बैड, टू डिफिकल्ट. Okay, so that is why pole changing करना है, तो क्योंकि otherwise the motor will not run. If the stator and rotor poles are not same, the motor will not run. ठीक है. तो अब इसमें यही बात हो गई कि because the rotor has no connections, no winding, तो rotor resistance cannot be inserted. No resistance can be inserted in the winding. और यहाँ पे तो आप resistance डाल सकते हैं. तो major इनमें यही difference है. You can insert a resistance in the circuit of the rotor in case of wound rotor machine, whereas the same cannot be done in squirrel cage induction. और एक चीज और भी है कि इसमें मेंटेनेंस वगैरह भी ज्यादा होता है स्लिपरिंग मोटर में, क्योंकि स्लिपरिंग्स है ना इसमें, तो स्लिपरिंग जब भी आ जाएगी, स्लिपरिंग्स आर यूज्ड व्हेनेवर यू वांट टू टेक एनी कनेक्शन फ्रॉम अ रोटेटिंग बॉडी. तो स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर तो बिकॉज उसमें कोई मेंटेनेंस नहीं है, साइज भी कम है, बिकॉज उसके रोटर का कोई कनेक्शन अपने को लेना ही नहीं होता. वी डोंट हैव टू टेक एनी कनेक्शन फ्रॉम द रोटर. रोटर इज जस्ट लाइक मतलब पूरा सॉलिड शॉर्ट सर्किटेड कॉपर का रोटर ऐसा मान लीजिए, बट सॉलिड बनाएंगे तो उसमें हिस्टेरिसिस, एडी करंट, ये सब एडी करंट लॉसेस बहुत ज्यादा होंगे, इसलिए लैमिनेटेड बनाते हैं.
मतलब ऐसे पतले 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 लैमिनेशंस को साथ में जोड़ जोड़ के वो रोटर बनता है। एक उसका लैमिनेशन जो है पतला सा होता है, तो दूसरा भी रखते हैं, तीसरा भी रखते हैं, ऐसे 100-200 साथ में रखते हैं, तो एक सर्कल पूरा सिलिंड्रिकल बन जाए। पूरा सॉलिड सिलिंड्रिकल नहीं लेते, बिकॉज अदरवाइज एडी करंट बढ़ जाए। ठीक है, सो नाउ the maintenance and all is there in wound rotor induction motor because of the presence of slip ring, क्योंकि आपका रोटर में इसमें पूरी वाइंडिंग है, तो उसमें आपको वाइंडिंग है, तो इसका मतलब उसको सप्लाई करना है या सप्लाई उससे लेना है, कुछ भी करना है, तो यू हैव टू टेक कनेक्शन। अब रोटेटिंग बॉडी है, उसमें से कनेक्शन लेना है, तो उसके लिए आपको कुछ ना कुछ ऐसा यूज करना पड़ेगा। स्लिप रिंग क्या होती है, ऐसे होती है, वो भी रोटर के साथ साथ ऐसे ऐसे घूमती जाती है, ऐसे आधी आधी ऐसी कटी हुई होती है। यहाँ से आप एक तार लेते हैं, यहाँ से दूसरा। अब क्योंकि ये भी रोटेट हो रही है, तो आपको कनेक्शन लेने में इजी पड़ता है, नहीं तो रोटर में तो पूरा तार ही बंध जाएगा, पूरा बिंद जाएगा पूरा, व्हेन यू आर टेकिंग पावर फ्रॉम द रोटर। नाउ methods of speed control. So for the squirrel cage induction motor, only these two methods are possible: stator voltage control and stator frequency control. ये जो frequency है उसी को अपन लोग V/F ड्राइव बोलते हैं। सिर्फ फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं करते हैं हम, वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी दोनों चेंज करते हैं, तो इसको V/F बोलते हैं। और यहाँ पे क्या चेंज करते हैं, फ्रीक्वेंसी नहीं चेंज करते, सिर्फ वोल्टेज चेंज करते हैं। मीनिंग दिस मेथड स्टेटर वोल्टेज कंट्रोल इज लाइक अ आर्मेचर कंट्रोल ऑफ डीसी, यू आर चेंजिंग द वोल्टेज अप्लाइड टू द स्टेटर। तो ये दो मेथड है। और मेथड ऑफ स्पीड कंट्रोल फॉर वाउंड रोटर इंडक्शन मोटर, ये दो तो है ही, 1 2, दीज आर द सेम, बट यहाँ पर एक रोटर रेजिस्टेंस कंट्रोल है और एक स्लिप पावर कंट्रोल। स्लिप पावर कंट्रोल जो है, जिसमें कि रोटर सर्किट में वोल्टेज इंजेक्ट किया जाता है। एज यू नो कि स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में यू कैन प्ले विद द रोटर, you can take supply from rotor, you can add another supply to the rotor also, you can inject power inside the rotor, okay, and you can take power from the rotor। मतलब रोटर की पावर को आप बाहर ले सकते हैं और रोटर को एडिशनल पावर दे भी सकते हैं, इसी चीज को हम कहते हैं स्लिप पावर कंट्रोल। ठीक है, by injecting voltage in the rotor circuit, these are two types of methods, one is the Serbius drive, okay, Serbius, and one is the Kramer। तो ये दो हैं, ठीक है। एक कांस्टेंट, एक मेथड जो इनमें से है वो कांस्टेंट टॉर्क मेथड है, दूसरी जो है वो कांस्टेंट पावर मेथड, क्रैमर मेथड। ये दो साइंटिस्ट थे, ये के है, सर्बियस और क्रैमर ने प्रपोज की थी। तो इसके अंदर दो मेथड हैं, ठीक है। बाकी दीज टू आर सेम फॉर बोथ द मोटर्स, दीज टू, ओके। तो अब आपको प्रत्येक मेथड जब हम पढ़ेंगे तो यू हैव टू सी व्हाट आपको पढ़ना क्या है, ये मैं पहले बताऊं आपको। कि ये तो ठीक है, बोलेंगे हम कि वोल्टेज हम चेंज करेंगे, चेंज क्या करेंगे, कैन यू इंक्रीज वोल्टेज, बताओ, कैन यू इंक्रीज द सप्लाई वोल्टेज ऑफ एनी मोटर। मान लो 400 वोल्ट की मोटर है, डिजाइंड है, कैन यू गिव मोर देन 400 वोल्ट्स? ओ मैम, नो, नेवर। क्योंकि क्यों नहीं दे सकते, क्योंकि मोटर का डिजाइन है 400 वोल्टेज के हिसाब से, उसका पूरा इंसुलेशन वगैरह डिजाइंड है, पूरी उसकी सेफ्टी वोल्टेज के हिसाब से डिजाइंड है। सो यू कैन नेवर इंक्रीज द वोल्टेज, है ना, you can never increase the voltage of any device in electrical, any electrical device, so that means you can only, what can you do, you can only reduce the voltage in any drive। ये सब फॉर्मूले प्रिंसिपल सब सेम है जो अपन ने डीसी में भी पढ़ा है। तो वोल्टेज सिर्फ कम किया जा सकता है, और अगर वोल्टेज को कम करेंगे तो क्या होगा, आपका स्पीड कम होगी, बिल्कुल सीधी सी बात है ना। if you applied voltage is reduced, speed will reduce। ठीक है, तो दैट मीन्स दिस विल वर्क ओनली द बिलो द बेस स्पीड, दिस मेथड विल ऑलवेज वर्क बिलो बेस स्पीड, बिलो ओमेगा बी, रेटेड स्पीड या बेस स्पीड जो भी कहो, जो नेम प्लेट पे लिखी होती है उसको बेस स्पीड बोलते हैं। 1000 आरपीएम की मोटर है ना, या तो इसका मतलब उसकी 1000 आरपीएम बेस स्पीड है जो नेम प्लेट पे लिखा है, ठीक है। तो दैट मीन्स यू कैन नॉट इंक्रीज द स्पीड हियर, यू कैन ओनली रिड्यूस द स्पीड, ठीक है। एंड दिस मेथड, ये जो मेथड है, इस मेथड में इसको अपन लोग सभी जितनी भी वोल्टेज कंट्रोल मेथड्स हैं, दे आर नोन एज, what do we call these methods, constant torque drives। and why do we call them constant torque? इनको constant torque drive इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें वोल्टेज तो रिड्यूस किया आपने,
रेटेड से रिड्यूस ही कर सकते हैं, स्पीड भी रिड्यूस हुई. बट at any value of speed you can get full rated torque. You can get means motor is capable of providing full rated torque at any of the speeds जो आप डिक्रीज करते जा रहे हैं. मान लीजिए यहाँ 1000 था, उसके बाद आप कम करते 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 इसको जहां तक भी लेके जा रहे हैं, 200 तक ले जा रहे हैं, मान लीजिए 200 आरपीएम तक ले जा रहे हैं वोल्टेज कम करके. तो प्रत्येक पॉइंट पे यहाँ पे एट ईच पॉइंट यू कैन लोड द मोटर टू मैक्सिमम. दिस इज व्हाट इज said to be the constant torque drive. Okay, now because you can take the full torque from the drive. अब हमें आगे देखना है कि क्या इंडक्शन मोटर में क्या होता है या क्या इसकी लिमिटेशंस रहेंगी इस ड्राइव की. क्या ये आपको रिड्यूस्ड स्पीड पे भी रेटेड लोड दे पाएगा, रेटेड टॉर्क दे पाएगा, है ना. और सिमिलर स्टेटर फ्रीक्वेंसी कंट्रोल. फ्रीक्वेंसी कंट्रोल इज अबव बेस स्पीड. रेटेड फ्रीक्वेंसी पे मोटर रन्स एट रेटेड स्पीड, रेटेड वोल्टेज, रेटेड फ्रीक्वेंसी, रेटेड स्पीड. If you reduce the frequency, ठीक है, if you reduce the frequency, क्या हो जाएगा आपका टॉर्क. फ्रीक्वेंसी डिनोमिनेटर में होती है. If you increase the frequency, you will get speeds above rated. ठीक है. तो when you increase frequency, frequency voltage control में voltage को reduce ही किया जाता है. फ्रीक्वेंसी कंट्रोल में फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज किया जाता है बेस स्पीड से, बेस फ्रीक्वेंसी से. 50 हर्ट्ज पे मोटर है, बेस FB. ठीक है. And you increase, go on increasing the frequency for getting what? For getting speeds above rated. तो ये दोनों मेथड बिल्कुल क्लियर समझ लीजिए. अच्छा, V by F जब दोनों करेंगे तो अगर वोल्टेज रिड्यूस करेंगे तो फ्रीक्वेंसी भी रिड्यूस करेंगे. ठीक है. 400 वोल्ट की मोटर है, ठीक है, 400 वोल्ट, 50 हर्ट्ज, ये हो गया 50 हर्ट्ज रेटेड हो गया. तो इसको अब करेंगे तो कितना आएगा? V by F का रेशो आएगा 8. तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर आपने वोल्टेज को कम किया तो सेम फ्रैक्शन से, मान लीजिए वोल्टेज को 0.8 कर दिया, 400 मल्टीप्लाइड बाय 0.8, तो वो फ्रीक्वेंसी को भी 0.8 टाइम्स रिड्यूस करेंगे ये वाले में, V by F. ठीक है. लेकिन अगर इसका मतलब ये हुआ कि जो फ्रीक्वेंसी कंट्रोल है, दिस विल गिव यू बिलो बेस स्पीड ऑल्सो. बिलो बेस स्पीड जो आएगा उसको अपन V by F बोलेंगे. मतलब V भी चेंज कर रहे हैं और F भी चेंज कर रहे हैं. और जो अबव बेस स्पीड आएगा उसमें वोल्टेज फिक्स्ड है, फ्रीक्वेंसी बढ़ती जा रही है और यू विल गेट स्पीड्स अबव. ये एक जो बेसिक फंडा है वो याद रखिए, तो फिर आगे आपको सब चीज समझने में इजी रहेगा. ठीक है. नाउ वी डिस्कस अबाउट द, ये मैंने बहुत शॉर्ट में रखा हुआ है, जस्ट उतना ही पढ़ा रहे हैं आपको जितना आगे जरूरत है. ठीक है. तो सिंक्रोनस स्पीड आपको मालूम है, स्टेटर इज सप्लाइड विथ अ बैलेंस 3 फेज AC सप्लाई और फ्रीक्वेंसी ओमेगा रेडियंस पर सेकेंड. इसी को साइकिल्स में बोलेंगे F साइकिल्स पर सेकेंड, और यहाँ बोलेंगे रेडियंस पर सेकेंड. एक साइकिल या एक पूरा सर्कल में रेडियंस कितने हो जाते हैं? 2 पाई रेडियन. 2 पाई रेडियन हो गए. और एक साइकिल, 1 साइकिल इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन. तो इसी F साइकिल पर सेकेंड को अगर हम रेडियंस पर सेकेंड में बताएंगे तो इस तरह से 4 पाई F अपॉन P आ जाएगा आपका रेडियंस पर सेकेंड, क्योंकि 1 साइकिल कैन बी रिटन एज 2 पाई. इफ देर आर F साइकिल्स देन 2 पाई F हो जाएगा. 2 पाई F साइकिल्स इन पर सेकेंड. ठीक है. पर अगर नंबर ऑफ पोल्स भी हैं तो वो स्पीड आपकी नंबर ऑफ पोल्स से भी डिवाइड हो जाएगी कि कितने नंबर ऑफ पोल्स हैं. ठीक है. क्यों नंबर ऑफ पोल से क्यों डिवाइड हुआ? क्योंकि अगर 4 पोल की मशीन है तो NS NS, ओके, 4 पोल है तो यहां से यहां तक 180 रेडियंस होता है. ये हो गया पाई रेडियन, ये हो गया और पाई. ठीक है. क्योंकि N और S के बीच में मैकेनिकल एंगल तो डिपेंड करेगा कि फिजिकली कितने पोल्स हैं, बट N और S पोल के बीच में इलेक्ट्रिकली ऑलवेज पाई रेडियंस, ऑलवेज 180 डिग्री, मतलब पाई रेडियन. तो मतलब ये हो गया कि एक साइकिल में
कितने नंबर ऑफ पोल्स हैं उसके ऊपर भी ये डिपेंड करेगा, है ना, नंबर ऑफ पोल पे, उस पे भी डिपेंड करेगा रेडियंस पर सेकेंड। तो इसीलिए ये फॉर्मूला अपन ने डिराइव कर दिया 4πf/p, क्योंकि अगर नंबर ऑफ पोल्स 4 हैं तो ये आपका जो एक साइकिल है, वन साइकिल जो इक्वल टू वन साइकिल, वन साइकिल वाज इक्वल टू हाउ मच, 2π रेडियन, बट 2π नहीं होगा, बेसिकली इट विल बी इक्वल टू 2π, या सॉरी 2π इंटू जितने पेयर ऑफ पोल्स हैं p/2, क्लियर, क्योंकि 2π तो यहां से यहां तक ही हो जाएगा, फिर यहां से यहां तक फिर 2π, तो मतलब ये 4π हो गया, और ठीक है, तो 2π इंटू p हो जाएगा ये, तो πp हो जाएगा, ठीक है, 2 कट जाएगा, तो एक साइकिल जो है, एक साइकिल मतलब πp रेडियंस होता है, ठीक है। तो इस तरह से ये वाला फॉर्मूला आपका आ जाता है 4πf/p रेडियंस पर सेकेंड। बेसिकली आप बस साइकिल पर सेकेंड f को, साइकिल पर सेकेंड को रेडियन पर सेकेंड में चेंज कर रहे हैं, दैट्स ऑल, या पाई इंटू पी भी एफ इंटू। तो दिस इज, जब आपको रेडियंस पर सेकेंड निकालना है तो ओमेगा m विल बी इक्वल टू 4πf/, और रिलेटिव स्पीड बिटवीन स्टेटर फील्ड एंड रोटर, स्टेटर में जो फील्ड होता है उसमें और फिजिकली रोटर में, उसको कहते हैं स्लिप स्पीड, एंड स्लिप स्पीड इज ओमेगा SL। ओमेगा SL इज स्टेटर स्पीड, मतलब फील्ड स्पीड माइनस रोटर स्पीड, एंड दिस इज इक्वल टू S इंटू ओमेगा MS, क्योंकि S का फॉर्मूला, स्लिप का फॉर्मूला आपको मालूम ही है, NS माइनस N/NS होता है, यहाँ पे ओमेगा MS हो जाएगा, ओमेगा MS इज द सिंक्रोनस। समझ में आ रहा है ना सब तुम लोगों को, बस वो वेरिएबल्स अलग हैं, ठीक है, ये सारे फॉर्मूले लेकिन याद रखने पड़ेंगे। सिमिलरली रोटर फ्रीक्वेंसी जो है दैट विल बी S टाइम्स F की जगह, जो अपन F यूज करते थे उसकी जगह सब जगह ओमेगा यूज होगा, तो ओमेगा R विल बी इक्वल टू S इंटू ओमेगा, क्योंकि रोटर की फ्रीक्वेंसी अलग रहती है, रोटर के वोल्टेजेस की फ्रीक्वेंसी अलग रहती है ना दीक्षा, आप लोग सब बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी इंडक्शन मोटर में इसी चीज पे आते हैं कि अगर 50 साइकिल इंडक्शन मोटर है और स्लिप अगर 4% है तो व्हाट विल बी द रोटर फ्रीक्वेंसी, तो 50 इंटू 0.04 करना पड़ता है कि नहीं, करते हो कि नहीं करते हो, तो यस चीज है, बस यहाँ पे मैंने इसलिए ये फिर से लिख लिए हैं क्योंकि यहाँ रेडियन की वजह से थोड़ा सा ये फर्क आ जाएगा, एक साइकिल जो है वो 2π रेडियन हो जाता है, या रादर पाई इंटू पी हो जाएंगे, क्योंकि एक जितने पोल होंगे उतने से पाई पाई मल्टीप्लाई होता चलेगा। एन और एस के बीच में 180 डिग्री होता है, ये याद रखना इलेक्ट्रिकल। मैकेनिकली तो यहाँ पे 90 डिग्री हो जाएगा अगर 4 पोल है तो, और ज्यादा पोल होंगे तो मैकेनिकली और कम हो जाएगा, है ना। तो इसलिए मैकेनिकल एंगल हमेशा, मैकेनिकल एंगल और इलेक्ट्रिकल एंगल में इसीलिए फर्क रहता है, इलेक्ट्रिकल एंगल हम बढ़ा सकते हैं, मैकेनिकल ऑलवेज 360 रहेगा, पर अगर हमने ज्यादा पोल फिट कर दिए तो इलेक्ट्रिकल एंगल बहुत बढ़ जाएगा, तो जो सप्लाई निकलेगी उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत होगी, क्योंकि वो एन से एस तक और एन तक जाते तक एक साइकिल कंप्लीट, जब कंडक्टर एन से एस और एस से एन जाता है तो वन कंप्लीट साइकिल ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर इज जनरेटेड व्हेन द कंडक्टर ट्रेवल्स फ्रॉम एन टू एस एंड एस टू एन, आधा साइकिल एन टू एस में ही हो जाएगा, ठीक है। तो ये पूरा ड्यू टू द रिलेटेड पढ़ लेना इसको और ध्यान से, इतना ज्यादा कुछ नहीं है, वही है। तो इंडक्शन मोटर परफॉर्मेंस, अब परफॉर्मेंस की अगर बात करें, इफ द रोटर स्पीड इज लेस देन सिंक्रोनस स्पीड, है ना, तो जो रिलेटिव स्पीड बिटवीन टू जो है वो पॉजिटिव होती है, तो इसीलिए ये क्या होता है, द रोटर इंड्यूस्ड वोल्टेजेस हैव द सेम फेज सीक्वेंस एज द स्टेटर वोल्टेज, मतलब रोटर में जो इंड्यूस्ड वोल्टेजेस हैं उनका फेज सीक्वेंस सेम होता है जो स्टेटर में होता है, और करंट जो है, जो रोटर में करंट फ्लो होती है, they produce a field which moves at the slip speed in the same direction as the rotor, जिस डायरेक्शन में रोटर घूम रहा है, ठीक है, तो जो रोटर जो फील्ड प्रोड्यूस करता है वो भी उसी डायरेक्शन में होता है, ठीक है। थ्री फेज currents through the rotor produce a field which moves at the slip speed
in the same direction as the rotor speed. जबकि यही चीज आप देखो उल्टा करो, ओमेगा एम ग्रेटर देन ओमेगा एम एस जब होगा, मतलब मोटर की स्पीड सिंक्रोनस स्पीड से ज्यादा होगी। अब नॉर्मली तो कभी भी मोटर की स्पीड सिंक्रोनस स्पीड से ज्यादा नहीं होती है, बट हम कर सकते हैं मोटर की स्पीड। क्यों कर सकते हैं? अगर आपने फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी तो अपन ने अभी देखा ना ओमेगा एम एस इज इक्वल टू 4 पाई एफ अपॉन पी होता है, ठीक है। तो अगर तुमने फ्रीक्वेंसी कम कर दी तो आपकी जो सिंक्रोनस स्पीड है वो बढ़ जाएगी, या फ्रीक्वेंसी बढ़ा, जैसे आपने फ्रीक्वेंसी चेंज की तो फ्रीक्वेंसी के साथ आपकी सिंक्रोनस स्पीड भी बढ़ जाएगी। तो इसलिए इस तरीके से आप और आपकी मोटर की स्पीड जो है वो भी बढ़ जाएगी। तो यू विल एक्चुअली कम एट ए डिफरेंट स्टेप, आप एक अलग ही पॉइंट पे पहुंच जाएंगे। दूसरा जो स्पीड, रोटर की स्पीड सिंक्रोनस स्पीड से ज्यादा कब हो सकती है? वही जब ट्रेन ढलान पे जा रही है, मींस when an active load torque drives the motor in the opposite direction, that time this condition can come, ठीक है। तो रोटर इंड्यूस्ड वोल्टेजेस हैव ए फेज, इसमें इसका एग्जैक्ट ऑपोजिट है, यहाँ सेम फेज सीक्वेंस होगा, यहाँ पे रोटर इंड्यूस्ड वोल्टेजेस विल हैव ए ऑपोजिट फेज सीक्वेंस, ठीक है। थ्री फेज करंट थ्रू द रोटर आल्सो प्रोड्यूस अ फील्ड which moves at the slip speed मतलब ओमेगा एस एल, ये स्पीड स्लिप स्पीड है, ओमेगा एस एल which is what omega ms minus omega m, the synchronous speed minus rotor speed, इसको बोलते हैं स्लिप, ठीक है। तो आपको पता है कि जो स्टेटर का जो फील्ड है वो तो हमेशा सिंक्रोनसली रोटेट होता है ओमेगा एम एस पे, सिंक्रोनस स्पीड पे, ठीक है। रोटर भी इसी डायरेक्शन में रोटेट होता है ओमेगा आर पे। अब ये रोटर स्पीड हो गई, या ओमेगा एम कह लीजिए इसको, रोटर स्पीड को ओमेगा एम, इन दोनों के बीच के डिफरेंस को हम कहते हैं ओमेगा एस एल, पीछे की स्लाइड में देखा। नाउ अगर ये कंडीशन है तो रोटर का जो फील्ड है, फील्ड ड्यू टू रोटर, वो भी इसी डायरेक्शन में होगा और उसका फेज सीक्वेंस सेम होगा, अदरवाइज रोटर फील्ड विल बी इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। इतना ही यहाँ पे हम, so the rotor field moves in space at the same speed as the stator field and a steady torque is produced, but the developed torque has a negative sign suggesting generator operation। तो if इसमें भी वही है, जैसे वहां पे भी अगर मोटर की स्पीड बेस स्पीड से ज्यादा हो जाए तो जनरेशन होता है, सिमिलरली यहाँ पे भी if the rotor speed is greater than the synchronous speed तो आपका ब्रेकिंग, रीजनरेटिव ब्रेकिंग में चलता है। बिकॉज इट इज अ ड्राइव तो आपको मोटरिंग ऑपरेशन, जनरेटिंग ऑपरेशन इस तरीके से पढ़ना पड़ेगा इसमें। यू विल हैव टू स्टडी द मोटरिंग ऑपरेशन एंड द जनरेटिंग ऑपरेशन, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड इज ऑन द इंडक्शन मोटर इक्विवेलेंट सर्किट, बिकॉज इन ऑल द स्पीड कंट्रोल यू हैव टू स्टडी दिस। तो अब हम लोग कौन सा वाला इक्विवेलेंट सर्किट यूज करते हैं, ये सब जस्ट आपको रिवाइज करना है। ये स्टेटर का है, ये रोटर का है, देन व्हाट यू डू, यू रेफर ऑल द पैरामीटर्स, ये जो है इनको आप इसी साइड पर कर देते हैं, तो ये एस एक्स आर और आर आर ये जो है ये इस साइड आ जाते हैं एंड दे बिकम एक्स आर डैश, मीन स्टेटर रोटर पैरामीटर्स आर ट्रांसफर्ड टू द स्टेटर। तो इक्विवेलेंट सर्किट एज रेफर्ड टू द स्टेटर, एंड दिस इज द अप्रोक्सीमेट इक्विवेलेंट सर्किट जिसमें मैग्नेटिक सर्किट पैरामीटर्स को आपने टोटली हटा ही दिया है। तो दिस इज अंदाजन है, इसको आपने हटा दिया टोटली। तो सिर्फ रोटर रेजिस्टेंस, स्टेटर रेजिस्टेंस, रोटर रिएक्टेंस, स्टेटर रिएक्टेंस, एंड दिस इज द VT व्हिच इज द थेवेनिन्स इक्विवेलेंट वोल्टेज ऑफ दिस। नॉर्मली इसको भी V के बराबर ही मान लेते अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। तो ये आप लोग को दिखाना था सो दैट यू अंडरस्टैंड कि कौन सी चीज कहाँ है, ठीक है। नाउ दीज आर सम वोल्टेज एंड अदर इक्वेशंस, वोल्टेज एंड करंट इक्वेशंस, ठीक है। तो मोस्टली अपने को करंट इक्वेशन बहुत ज्यादा यूज होगा, ये वाला तो यूज नहीं होगा क्योंकि थेवेनिन वगैरह जस्ट पढ़ाने के लिए है, उसके बाद इसको बाद में यूज नहीं करेंगे। सो द रोटर करंट वोल्टेज तो हम अप्लाई ही कर रहे हैं, तो VT और V को हम लगभग लगभग सेम ही मान लेते हैं अप्रोक्सीमेटली। नाउ व्हाट इज द रोटर करंट विच फ्लोज हियर, वो वोल्टेज अपॉन पूरा रोटर रेजिस्टेंस प्लस स्टेटर रेजिस्टेंस प्लस J टाइम्स रोटर रेजिस्टेंस and stator resistance। rotor resistance and reactance is dash से दिखाया गया है because it is the referred value, okay। we have referred the rotor resistance and rotor reactance to the stator circuit, ठीक है। तो when you refer it तो
it gets multiplied by the turns ratio nr upon n. स्क्वायर टर्न्स रेशियो के स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है। वो भी हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि एक्स आर डैश इज इक्वल टू रेशियो स्क्वायर इंटू एक्स आर। एग्जाम में समझ में आएगा। नाउ द एयर गैप पावर विल बी 3 फेज है, ये सर्किट जो था वो पर फेज बेसिस पे था, इक्विवेलेंट सर्किट पर फेज, ओके। सो यू हैव टू मल्टीप्लाई नाउ, क्योंकि 3 फेज है तो द एयर गैप पावर विल बी 3 टाइम्स द rotor current square multiplied by the rotor resistance. And what is the rotor resistance? Rotor resistance becomes RR dash upon S. Slip term जो है वो rotor resistance में आ जाएगा because you are equating it to the stator side and you are bringing the मतलब exactly the same amount of copper loss जो यहाँ है। तो इस तरह से ये सब अपने को पता ही है, ये just revision है equations का। अब पावर कितनी मोटर डेवलप करेगा, मोटर पावर, मैकेनिकल पावर पीएम, ये देखिए मैकेनिकल पावर ऑफ द मोटर, वो हो जाएगी गैप में, एयर गैप में कितनी पावर है माइनस कितने लॉसेस। तो ये दोनों इक्वेशन को देखिए, इसको और इसको, तो आपको ये इक्वेशन कि मोटर डेवलप पावर विल बी इक्वल टू द गैप पावर इनटू 1 माइनस एस। इसका मतलब क्या हुआ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन ड्राइव पॉइंट ऑफ। इसका मतलब मोटर की स्लिप जितनी कम होगी उतना ज्यादा पावर डेवलप होगा। क्यों दीक्षा, इज इट क्लियर? संजय, होगा ना, जितनी स्लिप कम Yes, ma'am. है ना,